Okay, so index is basically a power of some number. So if you have something like a की power m, right? So this power, any number is written in some powers. कोई वैल्यू लिख लेते हैं, उसके ऊपर हम कुछ पावर डाल देते हैं. ये जो पावर होती है ना, इसको इंडेक्स बोलते हैं. जो इसका प्लूरल फॉर्म होता है उसको इंडाइसिस बोलते हैं. मतलब प्लूरल फॉर्म यानी कि ज्यादा इंडेक्स की बात करें तो हम उसको इंडाइसिस बोलते हैं, और नीचे वाले वैल्यू को हम बेस बोलते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज that we are expected to remember. When I'm saying a की power m, right? So basically it is meaning that a is being multiplied how many times? M times. That is the basic meaning of any number to the power of any number. That is the basic purpose. There are certain characteristics and rules that we are expected to follow for this. So what are those basic rules and characteristics? That is the most important thing that we have in this particular chapter. So let's say we have something like a की power m into a की power n, right? So this can be actually solved as a की power m plus n. What I'm saying is, if you have 2 की power 3 multiplied by 2 की power 4, so rather than actually solving it and then multiplying, you can actually solve it 2 की power 3 plus 4. The answer is always same. That is the basic purpose. So what we say, when the bases are equal, power can be added. ठीक है, तो बेसिस आर इक्वल जो है, पावर्स विल बी एडेड. किसी का माइक ऑन है? किसका माइक? वॉइस इज ब्रेकिंग. माय वॉइस इज ब्रेकिंग? नो, आई थिंक. इज इट ब्रेकिंग फॉर अदर्स एज वेल? नो सर. No, sir. लुक्स लाइक योर नेट कनेक्टिविटी इज नॉट दैट गुड. कहीं पे और जगह बैठो आगे पीछे जाके, क्योंकि बाकी जगह आवाज ठीक जा रही है. ठीक है, so this is the first thing that we have to remember, that when the bases are equal, powers can be added. The second rule is that when you have a की power m divided by a की power n, this can actually be written as a की power m divided by a की power n, one and the same thing. In such a scenario, you have a की power m minus n. So when the bases are divided, when the powers, when such number is in division, then you subtract the powers. A की power m minus. So if you have like 2 की power 7, 2 divided by 3, you can actually cancel. You can also get an answer of 2 की power 5 minus 3, which is 2 का square. अगर आप कैंसिल करोगे इसको 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 को, तो भी यही आएगा. 2 क्यूब इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस आर इक्वल, पावर्स कैन बी एडेड, कट के यही आंसर आ जाएगा. सो दैट्स द सेकंड रिजल्ट. लेट्स से यू हैव a की पावर m होल की पावर n. इट कैन रिटन एज a की पावर m into n. That means if you have 2 की पावर 3, let us say whole की पावर 2, you can actually multiply 2 की पावर 3 into 2. So the powers get multiplied when they are in brackets. See, this value is different from a की power m की power n. Is because there is no bracket, there is a different way of solving this particular question. Let's say we have 2 की power 3 की power 2, right? So it is not that it will become 3 की power 6. If there is a bracket like this, right? If you have, it's a bracket right somewhere, then of course it gets multiplied. However, if there is no bracket, then the way you solve this question is top bottom, as in you start solving with the top 2 values. So first thing that you solve is this. So you have 3 square is 9, so you get 2 की power 9. What I'm saying is, if you have 2 की power 3 की power 2 की power 3, so how do you resolve it? Okay, क्या हुआ सुगन? Why not? क्या you will not be able to attend? So okay, so if you have something like this, 2 की power 3 की power 2, so how do you start solving? You start solving from top bottom, right? So what do you mean by top bottom? So the first 2 things that you solve is this. So you get 2 की power 3 2 की power 3 की power 8, 2 की power 3 की power 8. Now whatever answer you get for these two, you'll have 2 की power here. So that is what I'm saying when I'm solving something like this, right? Then if you have ab की power m, so you can actually solve it a की power m into b की power m. Or if you're given something like this can be combined. If you have a by b whole की power m,
it can actually be taken as a ki power m by b ki power m. I mean, let's say I have 2 into 3, that is 6 ki power 5, right? So I may be able to solve 6 ki power 5, or I can actually solve it 2 ki power 5 into 3 ki power 5. I'll have another same thing. Or if you're given something like this, you may take power common and take 6 ki power 5. Similarly, here, if I have, 2 by 3 ki power 5, so I can actually solve it 2 ki power 5 divided by 3 ki power 5. So that is the basic meaning when I'm trying to say some sort of result like this, right? Then we know anything to the power of 0 is always taken as 1. Of course, 0 ki power 0 is not indeterminate form, but anything to the power of 0 is always considered to be unity, and anything to the power of 1 is always taken as the same result value. That means, so if you have 2 ki power 0, you can have 1. You can say, this is same as 3 ki power 0. Obviously, you understand 2 ki power 0 and 3 ki power 0, you cannot cancel and say 2 is equal to 3, right? Of course, this will be wrong because you cannot really cancel powers or something like this. And anything, and 0 ki power 0, I told you, it will be a indeterminate form. So when you're excluding this, anything to the power of 0 is always 1. Anything to the power of 1 is same value. Say 2 ki power 1 is same as 2. If you have 3, you can write 3 as 3 ki power 1. So that really does not make much of a difference. Anything to the power of negative value. Let's say if I have a ki power minus m, so this can be written as 1 by a ki power m, right? Example ke taur pe, if I have 2 ki power minus 3, so couple of ways of understanding. You can say 2 ki power. So if at all there is a minus, let's say I say 2 ki power 1, for example. आवाज कहाँ से आ रही है? 2 की power minus 1, so it is 1 by 2, right? So this can actually be understood in terms of 2 की power 3 whole की power minus 1, so this becomes 1 by 2 की power 3. Or in another word, straight away, when you have 2 की power minus 3, you can write 1 by 2. That's all. तो जो minus है वो power denominator में चली जाती है, ये इसका minus का रूप होता है. आवाज कहाँ से आ रही है ये? Okay, so if you have any number to the power of fraction, let us say a ki power 1 by n, this is basically known as mth root of a, right? So if you have, let's say, 2 ki power 1 by 2, so it is, since it is 2, you say under root of 2. ये जो 2 है वो यहाँ पे आएगा. Let's say have 2 की power 1 by 3, so you have cube root of 2, यानी कि जो power है यहाँ पे आ जाएगा. If you have 2 की power 1 by 4, it is 4th root of, that is the basic meaning, right? So if you have, let's say, a ki power m upon n, so this is basically a combined result. It says mth root of a ki power, sorry, n by m कर देता हूं क्योंकि मैं mth root ले रहा हूं सभी जगह, a की power n upon m, so this becomes mth root of a ki power n, right? So how does it work? It works something like this. You have a की power n whole की power 1 by m. अभी मैंने बोला था 1 to pi होने का मतलब क्या है? mth root of a की power n. ठीक है, ये बाहर निकालने वाले, दोनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. a की पावर mn कैन बी रिटन एज a की पावर n into 1 by m, राइट? क्यों? क्योंकि हमें पता है, अभी स्टार्टिंग जो फर्स्ट बड़ा पढ़ा था वही पढ़ा था, a की पावर m into n is same as a की पावर m into, ये बताया था? हाँ, ये बताया था. So these are the certain rules that we are expected to follow in terms of surds. Any question on surds would require you to have an understanding of this idea. So I'm sure you are having books with you. So there are 2-3 examples. I want you to go through that. Example 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, before you really do this, let me just also tell you, where all it is applicable.
and a few things. Let's say I'm asking you to tell me, is root 2 greater, root 3 greater, root 4 greater, root 5 greater? इसका अगर असेंडिंग ऑर्डर करना है तो कैसे बनेगा? असेंडिंग ऑर्डर समझते हो? यस सर। कौन सा होगा? सर पहले रूट 2 आएगा, फिर रूट 3, फिर 4, फिर 5। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो nth वैल्यू थी ये सबकी सेम है। तो अगर ये रूट की वैल्यू सबकी सेम है तो जो अंदर वाली वैल्यू है वो जो बड़ी होगी वो वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी। जैसे कि मान लो मैंने कहा nth रूट ऑफ a, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेक्स, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, इसको बोलते हैं रेडिकैंड। तो अगर इंडेक्स सेम है तो जो रेडिकैंड बड़ा होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 5 क्यूब रूट ऑफ, अगर कुछ नहीं होता तो हम स्क्वायर रूट मानते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 5, फिफ्थ रूट ऑफ 5। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? सर 2√5 बड़ा होगा क्योंकि उसका बेस सबसे छोटा है। ठीक है, अगर मैं इसको वाले को लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। तो अगर पावर सबकी बड़ी है तो जो बेस बड़ा होगा वही आंसर बड़ा होगा। इसकी वैल्यू 1.414 होती है अंदाजा, इसकी वैल्यू 2 होती है, ऑब्वियसली लॉजिकली ये बड़ा ही है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या बनेगा? 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5। इसमें बेस सेम है तो हम पावर्स को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये वाला वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ये उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी। तो अगर हमारे पास इंडेक्स सेम है तो हम रेडिकैंड चेक करेंगे, और रेडिकैंड सेम है तो इंडेक्स चेक करेंगे। ये बात समझ में आती है? कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं अपन सर्ट्स का? इस तरीके से कर सकते हैं। यहां तक क्लैरिटी है? यस सर। यस सर। इसमें करो अरेंज। हाँ जी, मैं चाहता हूं इसको अरेंज करो, कौन सा सबसे बड़ा है उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा। सर सारे तो इक्वल हो गए। सारे इक्वल हैं, क्यों? सर क्योंकि जो 2 का जो पावर चल रहा है उसमें भी 1/2 है, इसमें 3 का पावर 1/3 है, इसका 4 का पावर 1/4 है, इसका 5 का पावर 1/5 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो सारी वैल्यूज बराबर हैं क्या? नो सर। बराबर कहां से हो गई? वैल्यू सेम थोड़ी है सर। 2 वैल्यूज तो इक्वल है। कौन सी दो? वो रूट 2 और 4√4। बिल्कुल सही। ऐसे कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 4 की पावर 4 सेम, ये तो हो गया बराबर। चलो कोई बात नहीं, बाकी कैसे करोगे? अब देखो, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि एक बार हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं कि रूट 2 बड़ा है या क्यूब रूट 3 बड़ा है। जब तक इंडेक्स
या रेडिकेंड सेम नहीं होगा तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ इंडेक्स 2 है, हमें इंडेक्स सेम करना है, जैसे दिस इज 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। जो इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में होता है, यहाँ 3 या 2 है, इनका एलसीएम कितना होता है 6। तो 6 बनाने के लिए मैं ऊपर 3 नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऊपर 2 नीचे 2 कर दूं, चलेगा? तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/6 और ये बन जाएगा 3 की पावर 3/6। ठीक, सर वो 3 की पावर 2/6। हाँ सॉरी 2/6। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल की पावर 1/6, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, लिख सकते हैं, पावर 1/6 है मल्टी, तो ये बनेगा 6th रूट ऑफ 2 क्यूब और ये बनेगा 6th रूट ऑफ 9। कौन सा बड़ा है? सर वो 6th रूट ऑफ 9। 3 स्क्वायर समझ लो एक बार समझाने की कोशिश। तो ये बनेगा 6th रूट ऑफ 8 और ये बनेगा 6th रूट ऑफ 9। ऑब्वियसली ये बड़ा है, इसका मतलब है ये बड़ा है। ऑब्वियस ऑफ कोर्स ये समझाने के लिए था, एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ये 2 है, ठीक है, इन दोनों को सेम बनाना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पावर 3 में डाल दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पावर 2 डाल दो, तो ये बन गया 6th रूट ऑफ 8, ये बन गया 6th रूट ऑफ 9। इसका आंसर है, काम खत्म हो गया। समझना क्या कह रहा हूँ? मान लेते हैं अपने को कंपेयर करना है क्यूब रूट ऑफ 3 5th रूट ऑफ 5, ऐसे कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक बता रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम 15 होगा, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 5 पावर में डाल दो, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 3 डाल दो, तो ये बनेगा 15th रूट ऑफ, कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 81 इंटू 3 कितना बन जाएगा 243। ये कितना बन जाएगा 15th रूट ऑफ 125। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। समझ में आ रही बात? तो सबसे बड़ा क्या हो गया 3 की पावर 1/3 बड़ा है। किससे बड़ा है? इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, लेकिन इसके बाद हमें किसको कंपेयर करना पड़ेगा 2 और 5 को। 2 की पावर 1/2 बड़ा है या 5 की पावर 1/5 बड़ा है। आ रही बात समझ में? अभी तक क्या हुआ, दिस इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5 की पावर 1/5। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? कैसे करोगे? ये अंडर रूट ऑफ 2 है, ये 5th रूट ऑफ 5 है। 10 बनाने के लिए ये 2 ऑलरेडी है, 5 करना पड़ेगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 10th रूट ऑफ 2 की पावर 5, ये बनेगा 10th रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो 10th रूट ऑफ ये बनेगा 32, ये बनेगा 10th रूट ऑफ 25। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। समझ में आ रही बात? तो हमारा बनेगा 3 की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1/2, चाहे तो यहाँ इक्वल टू लिख दो, 2 की पावर 4 की पावर 1/4 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 1/5। ये रिजल्ट आएगा आपका सारा। अब चाहे तो आप एक लाइन में भी कर सकते थे, सबका एलसीएम ले लो, तो लेकिन वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। एलसीएम ले लेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 12×5 60 बनेगा। 60 बनाने के लिए इसको 12 करना पड़ेगा, 12 की पावर 5 बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इट मेक सेंस कि हम 2-2 करके कंपेयर करें, उससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक एप्लीकेशन है सर्ट्स का या रूट्स का। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, बेसिस आर इक्वल, पावर्स कैन बी इक्वेटेड। मान लो मैंने कहा कि 2 की पावर 3x + 7 इज इक्वल टू 128, राइट? लेट अस से such kind of equations where power size in variable is known as exponential equations। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बेसिस नीड टू बी इक्वेटेड। सो अगर बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, अगर पावर्स इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगी। सो दिस बिकम्स 2 की पावर 3x + 7 एंड दिस विल बिकम 2 की पावर कितना बनेगा 7, 5 बनेगा 4 बनेगा 16, 5 32, 6 64, 7, 2 की पावर 7। तो ऑब्वियसली 3x + 7 इज इक्वल टू 7, तो x हैज टू बी 0। दैट्स द आंसर। ठीक, तो हमें ये करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मैं चाहता हूं कि एक बार किताब खोल के फटाफट बस देख लो, करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार देख लो, फिर मैं आपको सर्ट्स और रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स समझाऊंगा। सब लोग बुक आई होप सामने होगी आपकी, जो भी एग्जांपल्स हैं एक बार क्विकली इसको देख लो।
क्या बताऊं। ये टावल से मुंह पोछा है ना। सर हाँ बोलो। सर वो कुछ डाउट्स थे, तो आप क्लास खत्म होने के बाद इसी विंडो पे एक बार डाउट्स ले लोगे, वो साथ साथ सॉल्व हो जाएंगे। 5 मिनट लगेंगे, 2-4 डाउट है। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है। बस ठीक है, हो गया सभी का? कोई प्रॉब्लम इसमें एग्जाम्पल्स में? ठीक है, सो वी कम डाउन टू दिस थिंग जो हमने अभी अंडर रूट लिखा था ना, अंडर रूट ऑफ 2 मान लेते हैं। इस चीज को सर्ड कहा जाता है। ठीक है, जब मैंने इंडेक्स, रेडिकल और रेडिकेंड इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको हम सर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्योर सर्ड बोलते हैं, जैसे कि √2 इज अ या √3 इज अ प्योर सर्ड, राइट। लेट्स से आई हैव 2 into √3, मान लेते हैं ये प्योर सर्ड है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड, मिला हुआ है इंटीग्रल और सर्ड। अ मिक्स्ड सर्ड कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू अ प्योर सर्ड। जैसे कि ये है, मान लो 2 into कुछ नहीं है तो √3 है ना, तो जब ये 2 अंडर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये √3 है, 2 का स्क्वायर, ये 2 अंदर गया, चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए हो रहा है। मान लेते मेरे पास होता 2 क्यूब रूट ऑफ 3 होता, मान लेते 2 क्यूब रूट ऑफ 3, ये क्या बनता, क्यूब रूट ऑफ 3। ये जब 2 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 2 क्यूब बनेगा। समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं 2 into 4th रूट ऑफ 3 होता, तो ये क्या बनता, 4th रूट ऑफ 3 into 2 की पावर 4। तो अगर हमारे पास कोई मिक्स सर्ड है, वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इनटू अ प्योर सर्ड। ठीक है, एंड समटाइम्स प्योर सर्ड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स सर्ड। फॉर एग्जांपल, आई हैव अंडर रूट ऑफ 24, राइट, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 क्यूब into 3। और चूंकि यहाँ पे अंडर रूट है, ध्यान से यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो स्क्वायर होगा वो बाहर आएगा। दैट मीन्स आई कैन ऑलवेज हैव जैसे 2 स्क्वायर into 2 into 3। मैं 2 स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इस 2 स्क्वायर का जो, चूंकि यहाँ 2 है तो ये मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ, तो बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 6। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप प्योर को मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल ऑलवेज हैपन। जैसे √3 है तो कोई जरूरी नहीं है कि मिक्स में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि रूट से बाहर कैसे निकलता है, रूट के अंदर वैल्यू कैसे जाती है। फिर हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, सिमिलर सर्ड्स, लाइक सर्ड, डिसलाइक सर्ड्स, ये नॉमेनक्लेचर है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस टाइप के सर्ड्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा √2 + √3। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, रेडिकेंड तो अलग अलग है, इंडेक्स सेम है। क्या इसको जोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं बस। क्या हम इसका कुछ कर सकते हैं,
इसका भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे तो आप -√3 + √2 लिख लो। बट कैन यू मल्टीप्लाई? Yes, you can multiply because it will become √2 × 3। क्यों? क्योंकि इंडेक्स सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या आप डिवाइड कर सकते हो √2/√3 को? हाँ, आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स सेम है तो आप 2/3 कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर इंडेक्स सेम है, रेडिकेंड सेम है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल है। अच्छा, अब मान लेते हैं इंडेक्स अलग अलग है। मान लेते हैं मैंने कहा √3 एंड √2 मान लेते हैं। √3 एंड √3। अब इंडेक्स अलग अलग हो गया, तो क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूं? नहीं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। √3 + √2 लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा इंडेक्स अलग अलग है। क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं √? हाँ सर, ये आपने √2 × √3 लिखा है, तो यहाँ पे 2 × 3 नहीं आएगा सर? कहाँ पे? ये हाँ, सर इधर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं माइनस है √3, तो इसका भी कुछ नहीं कर सकते। -√3 + √2, ठीक है, 3, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? √3 × √3। यस, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दिस विल बिकम 3⁻1/2 × 3⁻1/3, विच कैन बी रिटन एज 3⁵5/6, विच कैन बी रिटन एज 6th रूट ऑफ 3⁵5। तो क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो? हाँ। क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? √3 डिवाइडेड बाय √3, तो हम इसको कर सकते हैं 3⁻1/2 होल डिवाइडेड बाय, so 3⁻1/2 and 3⁻1/3, so this can be written as 3⁻1/2 - 1/3। अभी हमने पढ़ा था ना सारी प्रॉपर्टीज, तो 3 की पावर कितनी बन जाएगी? 1/6, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज 6th रूट ऑफ 3। तो डिवाइड कर सकते हैं। So if index is same, then also multiplication division is possible. If radicand is same, then also multiplication division is possible, but addition subtraction is not possible। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कहां पे पॉसिबल है? जहां पे लाइक सर्ड्स होंगे, यानी कि मान लेते हैं मैंने कहा जो इररेशनल पार्ट है वो सेम हो। मान लेते हैं मैंने कहा 3√7 + 4√7, ये 4th रूट नहीं है, 4√7 है, -2√7। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, बिकॉज आप √7 कॉमन निकाल सकते हो। 3 + 4 - 2 आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 5√7। इस टाइप के जो सर्ज होते हैं जहां पे ये पूरा का पूरा कंपोनेंट सेम होता है, यानी कि इंडेक्स भी सेम है और रेडिकेंड भी सेम है, वहां पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा कुछ कर सकते हो। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है डिवीजन ऑफ सर्ज। डिवीजन ऑफ सर्ज यानी कि मान लो मैंने कहा √3 + √5 × √7 - √2, तो आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें होगा, ठीक है। कई बार डिवाइड करना पड़ जाता है। मान लेते हैं मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय √3 - √2 मान लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो सकता है, न्यूमरेटर में भी कुछ हो सकता था, तो डिनोमिनेटर में क्या हो? रैशनल नंबर हो। रैशनल नंबर होने के लिए हमें डिनोमिनेटर को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? जो बीच का साइन होता है वो बदल जाता है। तो ऊपर और नीचे अगर हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस बिकम्स a - b × a + b, सो दिस बिकम्स a² - b², विच इज नथिंग बट √3 का होल स्क्वायर - √2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में तो √3 + √2 बचेगा, तो ये बचेगा √3 + √2 होल डिवाइडेड बाय 3 - 2 which is 1। So what do you mean by rationalization? Rationalization का मतलब होता है rationalization कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर हो, और डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर लाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो इसका मतलब हमें कॉन्जुगेट के बारे में पता होना चाहिए। तो नहीं नहीं बेटू, नहीं करने दो। ओए ओके, सो रैशनलाइजेशन मतलब मान लेते हैं हम वो डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर चाहिए। तो मान लेते हैं मेरे पास 2 + √3 है, होल डिवाइडेड बाय मान लेते हैं 2 - √5 है। तो क्या इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 + √5। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं क्वेश्चन होता 2 + √3 डिवाइडेड बाय √5 - 2। ठीक, अब क्या होता है रैशनलाइजेशन फैक्टर इसका? सर क्या माइनस कॉमन ले, क्या √5 + 2 लिख सकते थे? सर माइनस कॉमन लेके वो लिखेंगे ना। माइनस क्यों कॉमन लेना है? हमें तो साइन ही चेंज करना था बीच में, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब भी हमको सर्ड और रैशनल और ये इरेशनल पार्ट आता है ना, तो हमें पहले रैशनल नंबर लिखना पड़ता है आइडियली, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। ये 3 लिखा तो इसको हमें लिखना पड़ेगा -2 + √5। ठीक है, अब हमें बीच में साइन चेंज करना है, तो ये बनेगा -2 - √5 डिवाइडेड बाय -2 - √5। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आप कॉन्जुगेट बताइए। समझ में आ रहा है? इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ √5 - 2? ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या है? तो इसका कॉन्जुगेट इसको ऐसे लिख के यहाँ पे करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, सर ये रूट के साथ माइनस क्यों नहीं आया? आया ना, ये देखो माइनस आया, यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया। ये कह रहे हो ये क्यों नहीं हुआ? इसी चीज को तो मैंने ऐसे लिखा है, इसको इस चीज को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा। ठीक है सर। ठीक है, इसी चीज को मतलब हमेशा पहले रैशनल नंबर लिखते हैं फिर इरेशनल नंबर लिखते हैं, वो पहले तरीका सही लिखना होता है, उसके बाद बीच वाला जो साइन होता है वो चेंज करना होता है। ठीक है, यही तरीका होता है इसका। तो ये जैसे अपने आप में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि √5 - √2 का रैशनल वो कॉन्जुगेट बताइए, तो जनरली बीच में बच्चा साइन चेंज कर देता है, हो जाता है, वो गलत हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट ये है, इसका कॉन्जुगेट ये ये दोनों चीज तो इक्वल ही है, और इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब हमने 2 के साथ प्लस साइन क्यों नहीं लगाया? हाँ, √5 क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ, जब भी हम कॉन्जुगेट, जब भी हम कोई रैशनल नंबर को लिखते हैं ना, तो पहले उसमें रैशनल पार्ट आता है और फिर इरेशनल पार्ट आता है। समझ रहे हो? पहले रैशनल पार्ट फिर इरेशनल पार्ट। और अगर एग्जामिनर ने उल्टा लिख के दिया है तो इसने जान करके लिख के दिया ताकि आप गलत करो। ठीक है, अच्छा, कई बार डिनोमिनेटर में तीन वो वैल्यूज हो जाती हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि इसको रैशनलाइज करो, 1 डिवाइडेड बाय मान लेते हैं 1 + √7, जो √6 - √7 मान लेते हैं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। एक बार आप इसको a मान लो और इसको b मान लो। ठीक है, तो इसका अगर रैशनलाइजेशन फैक्टर निकालोगे तो 1 + √6 + √7 बनेगा, और ये बनेगा 1 + √6 + √7 बनेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये बनेगा a + b × a - b बनेगा।
तो एक चीज बन जाएगा 1 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, ऊपर जो भी आए कुछ तो आएगा ही n, फिर इसको स्क्वायर करना पड़ेगा 1 प्लस 6 प्लस 2 रूट 6 माइनस 7, तो ये बन जाएगा n, 7 माइनस 7 कट गया, 2 रूट 6 आ गया। समझ में आ रहा है? और फिर जो भी न्यूमरेटर में आएगा रूट 6 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 6 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 2 बार करना पड़ता है। इस केस में तो लकीली 7 कट गया, एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें ना कटता, तो मेरे पास क्या बचता? मान लेते हैं मेरे पास नहीं कट के मेरे पास 2 बच जाता या 3 बच जाता, 3 प्लस 2 रूट 6 आ जाता, फिर मुझे रैशनलाइज करना पड़ता 3 माइनस 2 रूट 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 रूट 6, ऐसा 2 बार करना पड़ता है। अगर डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स आती है ना, तो रैशनलाइज करने के लिए 2 बार उसको करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। मतलब डिनोमिनेटर को में हमें रैशनल नंबर चाहिए, उसको लाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्मेट बने, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, जिसकी वजह से जो रूट है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स आ गई हैं तो मुझे 2 बार ये काम करना पड़ेगा, तब जाके वो खत्म होएगा डिनोमिनेटर में। बोलिए, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद आता है इसके अंदर एक चीज आती है अंडर रूट निकालना, अंडर रूट ऑफ सर्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वी नीड टू फाइंड आउट अंडर रूट ऑफ लेट्स से 62 प्लस लेट्स से अंडर रूट ऑफ 480। ये क्वेश्चन आता है, एक रूट का रूट निकालना होता है। अब अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और हमारे पास ऑप्शंस दी हों, तो सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शंस को जाके स्क्वायर कर दो। ऑप्शंस को जाके स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? मान लो मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 25 चाहिए, तो एक ऑप्शन कहीं ना कहीं 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो अगर मुझे आंसर निकालना है तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो अंदर वाली वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी ऑप्शंस को? यस सर, मिलेगी। मिलेगी। तो सबसे अच्छा तरीका वही होता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। लेकिन ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ने हमें टीटा क्वेश्चन दे दिया, मतलब इसमें हमें क्वेश्चन आंसर टाइप करना है, उस केस में हम फंस जाएंगे, इसलिए मुझे ये आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, आ गया फर्स्ट प्रायोरिटी गो बाय ऑप्शंस, but in case it doesn't happen then we have to do something like this. You see, since it is an under root, अगर ये अंडर रूट खत्म होना है तो ये वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी अंडर रूट से ये खत्म होगा, तभी मेरा आंसर आएगा। ये फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ रहा है कि अंदर वाली वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ताकि स्क्वायर और रूट खत्म हो जाए और मेरा आंसर आ जाए। तो इसका मतलब आई नीड टू मेक दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पे रूट है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्मेट होगा, तभी मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसका मतलब है इस चीज को, ऊपर वाले को मुझे ऐसे करना है। अब चूंकि इसमें रूट है, ये तो स्क्वायर का पार्ट हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 62 होनी चाहिए और 2 टाइम्स ab की वैल्यू मेरी अंडर रूट ऑफ 480 होनी चाहिए। समझ में आ रही बात ना? Technically speaking, it is a 2 variable 2 equation का question, but my problem here is if I were to solve this b या a would be in terms of b। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 480 divided by 2b। Now if I were to substitute this value of a here, so because I have a square plus b square is equal to 62, a square का करने का मतलब होगा 480 divided by 4b square plus b square is equal to 62. Now the moment I try to do this becomes 120, so it becomes 120 divided by b square plus b square is equal to 64. Now this, if you try to solve it, it becomes a 4th degree equation. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 4th डिग्री इक्वेशन में सॉल्व भी करना हुआ तो आप बी स्क्वायर को मान लेते हैं अल्फा मान लोगे, तो फिर ये बनेगा 120 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 64। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें अल्फा को डिस्कार्ड करना पड़ेगा बिकॉज अल्फा हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि बी स्क्वायर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, देयरफॉर नेगेटिव वैल्यू नीड्स टू बी डिस्कार्डेड. And then once again we find b, we need to figure out what is the value of a. Now that is the how mathematical process goes if you were to solve this question in this fashion.
However, my suggestion to you is to go ahead and try to solve using some trial and error. That will certainly help you. It will be much better and faster than this method. Of course, this is a foolproof systematic mathematical model in which we can handle this question. But for all practical purposes, if you are to solve this using this method in the exam, it may take 3-4 minutes. And therefore, I'm trying to give you some other better methods of handling it, which is once again trial and error, mind you. With practice, you'll be able to get. See, you are having 2 here, so I can always take 4 common because this becomes 4 into 120 under root. Why I'm trying to do is because I want 2 to get cancelled out, and this becomes 2ab. So my value is a into b की value root 120 है, और a square plus b square की value 62 है. So it is a good guess if you are able to see 120 is nothing but 60 into 2, right? So a into b. So if I were to write this value as root 60 into root 2 as a and b, I can cross check whether my assessment is correct or not. So a square becomes 60 and b square becomes 2. So I'm getting my answer as 62. Now, if you are unable to really do this, so आप कुछ लोग क्या कर सकते थे, हो सकता है कुछ लोग इसको 4 into 30 करके अंडर रूट मानते और a भी मान लेते. In that case, you would have got a as 2 and b as root 30, and you try to square it. It would become 4, it would become 30. Your answer would become 34, and you will say, okay, ये जो मैंने सोचा है ये सही नहीं सोचा है, तो हम इसको और कुछ कर लेते हैं. You may take it 8 here and you may take it 15 here under root. You may take a as 8 and b as 15. So a square would become 8 and b square would become 15, and you would see कि ये भी बात नहीं बन रही है. इसका मतलब जैसे दोनों वैल्यूज क्लोज हो रही हैं, जो इनका सम है वो कम होता जा रहा है. इसका मतलब आप कोशिश करोगे वैल्यूज को दूर दूर करने की. आप कुछ लोग ये भी सोच सकते थे, सर 120 है ए बी, तो अगर a को अपन 120 मान ले, b को 1 मान ले, तो 120 का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट 120 का स्क्वायर 120 बनेगा, b की वैल्यू 1 तो 121 बनेगा. यानी कि इतना दूर भी नहीं चाहिए. तो नेक्स्ट पॉसिबल है 2 into 120, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू है 4 into 30, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 8 into 15. आपको इससे आइडिया लगेगा कि जैसे हम दोनों के बीच की वैल्यू का गैप बढ़ा रहे हैं, तो जो सम आ रहा है वो कम आ रहा है. जैसे हम दोनों के बीच का गैप कम कर रहे हैं, जो सम आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है. उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरफ मूव करना है. So this gives you very good idea of solving this question. So here we are able to find that root a can be taken as root 2 or root 60, whatever you want. Root b can be taken as 2. Now our original understanding was here, right? So that means my question root 62 plus under root of 480, this can be handled in this particular fashion. What is the fashion I'm trying to say? So 62 can be written as root 60 ka whole square plus root 2 ka whole square. 480 can be taken as 2 common आ सकता है. It can be taken as root 60 into root 2. लिखा जा सकता है. Now if इसका overall under root निकालना है. Now if you look at this value, this is root 60 plus root 2 का whole square, because it is a square plus b square. And of course इसका under root निकालना है, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा root 60 plus root 2. Obviously अगर options दिए होंगे तो एक option तो ये भी दिया होगा, इसको square करोगे तो अंदर वाली वैल्यू मिल जाएगी. So that is the answer. So that is how you find out under roots of a surd. ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रैशनलाइजेशन बता दिया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी हैं, एक्सपोनेंशियल आपको इक्वेशन समझा दिया है मैंने, और अंडर रूट ऑफ सर्ड निकालना बता दिया है. बोलिए, क्लियर है ये बात? क्वेश्चन सबको समझ में आती है बात? यस सर. So this is basic in terms of surds, and you are expected to remember and memorize these rules. Only then you will be able to handle these questions. तो स्टैटिस्टिक्स में हम बेसिकली दो चीजें पढ़ते हैं. एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, एक चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और दूसरी चीज जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कि डिस्पर्शन जिसको बोलते हैं. तो सबसे पहली जो चीज है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं. तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है,
हम उस डेटा को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब है वो पूरा जो डेटा सेट है या जो जितनी वैल्यूज हैं उसकी एक ऐसी वैल्यू मुझे बता दो जिससे कि मैं सारे डेटा का एनालिसिस या सारे डेटा के बारे में समझ सकूं। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि अब क्लास में बच्चे बैठे हैं, मुझे ये बताओ कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस कराने इस क्लास में। तो मैं अब कैसे मुझे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि किस लेवल के बच्चे बैठे हैं, मतलब क्या स्कोरिंग वाले बच्चे बैठे हैं। अगर मैं सबसे पूछूंगा कोई 70 बोलेगा, कोई 80 बोलेगा, कोई 50 बोलेगा, कोई 90 बोलेगा, तो मुझे समझ नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा इस क्लास के ना एवरेज मार्क्स निकाल लेते हैं। मैंने देखा भाई इस क्लास के एवरेज मार्क्स 85 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक जजमेंट हो जाएगा कि अच्छा ये ना अबव एवरेज सी क्लास लग रही है, इसमें थोड़ा सा ऐसे करवाना पड़ेगा। मान लो मैंने देखा कि भाई एवरेज मैथ्स में तो इनके 20-30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, तो मुझे लगा अच्छा नहीं इसमें तो ना बिल्कुल ही बेसिक लेवल से उठाना पड़ेगा, बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या है कि जबकि ऐसा हो सकता है कि उस क्लास में बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा बैठा हो या बहुत जिसका मैंने एवरेज 85 माना है बहुत ही वीक बच्चा बैठा हो, ऐसा पॉसिबल है। इसीलिए हम कोई सिंगल मेथड यूज नहीं करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए, अलग अलग मेथड्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। बट इसका पर्पस अल्टीमेटली यही होता है कि एक सिंगल वैल्यू जिससे हम पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर अब अगर हम बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो ये कैसे समझेंगे महंगाई बढ़ रही है। कोई बोलेगा अच्छा हमारे वो उसका दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, फिर बोले नहीं तो कल तो टमाटर का दाम कम हो गया, तो कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है हमें पता नहीं। तो हम सारी चीजों का एक क्यूमुलेटिव वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और हम बोलते हैं अच्छा इन्फ्लेशन हमारा 6% है, 7% है, हाँ तो थोड़ी महंगाई बढ़ रही है। जबकि ऐसा थोड़ी ना हर एक चीज बढ़ रही है, उसका कुछ चीज कम भी हो रही हो। तो वो एक सेंट्रल टेंडेंसी जिसको हम बोलते हैं। ऐसे स्टॉक मार्केट, जब हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट का जो शेयर है आज 500 पॉइंट बढ़ गई, डज इट मीन कि सारे शेयर्स बढ़ गए? ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने जो शेयर खरीदा, मार्केट तो चढ़ गई 600 पॉइंट, आपका शेयर हो गया नीचे आधा। इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो बट वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज the entire big data into single one or two values so as to understand what is the core or central tendency of the given data. So how do you measure this central tendency? There are certain methods of measuring the central tendency. The first method of measuring the central tendency is arithmetic mean, जिसको हम मीन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसको हम सिंपलेस्ट टर्म में एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास टर्म्स हैं 2, 3, 7, 8, मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 20 डिवाइड बाय अरिथमेटिक 5 आ गया। एक सेंट्रल टेंडेंसी है, 5 इज रिप्रेजेंटिंग दिस एंटायर डेटा। अरिथमेटिक मीन में एक वेटेड मीन भी होती है, जैसे कि जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस होती हैं वो वेटेड मीन होती है। तो वेटेड मीन में क्या होता है, W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 so on till W1xn whole divided by weights, W1 plus W2 plus W3 so on till W1। इसको हम वेटेड मीन के नाम से भी जानते हैं। खासतौर पे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, या स्टॉक मार्केट का जो सेंसेक्स होता है, दे आर ऑल वेटेड मीन। अब अगर सबकी वेट्स, सबकी इंपॉर्टेंस हमने बराबर कर दी तो ये अरिथमेटिक मीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसकी वेटेज बराबर नहीं करी तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक वन ऑफ द मेज ऑफ मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी। हालांकि हर एक के अपने अपने कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। इसके अंदर जैसे नुकसान क्या है कि ये सिस्टम तब अच्छा काम करता है जब सारी वैल्यूज क्लोज हो। अगर बहुत वाइड वेरिएशन होता है वैल्यूज में तो गड़बड़ करता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए और बी के ना एवरेज मार्क्स 50 हैं, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, दोनों यार ऐसे बच्चे हैं। बस सच्चाई है एक के तो 0 है, एक के 100 है, बट मैंने एवरेज निकाली तो 50 आ गया। 50 का मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि दोनों ठीक ठीक से बच्चे हैं, बट रियलिटी में एक तो बहुत ही अच्छा बच्चा है और एक बहुत ही वीक बच्चा है। So it may give you wrong judgment, and therefore we are not dependent on just one method of measuring central tendency, arithmetic mean. There are other methods depending on what is required when it is required. ठीक, तो ये अरिथमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला है। हम इसको जनरली निकाल के इसको XI के नाम से भी जानते हैं। अरिथमेटिक मीन इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो सेकेंड मेथड है हमारा वो होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है।
ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास x1 x2 n से ऐड करके डिवाइड बाय n किया था ना, यहाँ पे जो इनके मीन है ना x1 x2 x3 सो ऑन टिल xn, उसका nth रूट निकालना है। समझ में आ रहा है? nth रूट ऑफ x1 x2 x3 सो ऑन टिल xn, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास 2 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मैं इसका अंडर रूट करके स्क्वायर कर दूंगा। मान लेते हैं 2 3 4 का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मैं इसका क्या करूंगा? क्यूब रूट कर दूंगा। आ रही बात समझ में? इसको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक, फिर हमारा होता है एक हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन वैल्यू। Harmonic mean is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the given value. क्या मतलब है इसका? जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, सिंपल। ठीक है, तो मान लेते हैं a और b 2 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। लास्ट में रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वैल्यूज है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना है। ये हमारा हार्मोनिक मीन होता है। इट इज द रेसिप्रोकल, यानी उल्टा किसका? ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ये अर्थ लिखा गया, समझ? ए होना चाहिए, ARITH। अर्थमेटिक मीन किसका? अर्थमेटिक मीन, ये अर्थमेटिक मीन है ना, ये अर्थमेटिक मीन है, यानी सम ऑफ द वैल्यू बाय अर्थमेटिक मीन। लेकिन अर्थमेटिक मीन किसका? रेसिप्रोकल्स का। किसका रेसिप्रोकल? जो वैल्यू गिवन है उसका रेसिप्रोकल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 बाय ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी डिवाइड बाय 2ab, तो ये ऊपर आ जाएगा 2ab बाय a प्लस बी। कहाँ पे देखा है आपने ये फॉर्मूला? कहाँ यूज होता है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए, याद है? आप मान लेते हैं दिल्ली से करनाल आए 40 की स्पीड से, करनाल से वापस गए दिल्ली 50 की स्पीड से, एवरेज स्पीड क्या होगी? 40 प्लस 50 बाई 2 तो नहीं होगी ना, 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50। जहां पे डिस्टेंस सेम होता है और डिसकंटिन्यूटी आ जाती है स्पीड में, वहां पे हार्मोनिक मीन लगता है। ऑफ कोर्स ये 2 वैल्यूज हैं। अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यूज होती, मान लेते हैं 3 वैल्यूज होती ABC, तो इसका हार्मोनिक मीन बनता 3ABC डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस CA। होता कैसे? इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता। किसका? अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन क्या है? ये है किसका? रेसिप्रोकल। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। ऐसे 4 टर्म्स होती तो 4ABCD डिवाइड बाय ABC प्लस ABD प्लस ACD प्लस BCD। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका होता है। ये भी एक तरह की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। बताइए, समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है, इसके बाद होता है हमारे पास इन तीनों में रिलेशन। हमेशा अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। यानी कि जो अर्थमेटिक मीन होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हमेशा बड़ा होगा। इक्वल कब होगा? जो वैल्यू सेम हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैंने 2 और 3 का अर्थमेटिक मीन लिया, वो ये बनेगा, कितना बनेगा? 2.5। ये हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से। किसका? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 से, जो कि √6 है। ठीक है, जो कि हमेशा बड़ा होगा किससे? 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, तो कितना बन जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 5, कितना बन जाएगा? 2.4। तो ये हमेशा बड़ा होगा 2.4 से। √6 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी बन जाएगी? कैसे निकाल सकते हैं √6 की अंदाजन वैल्यू? अब
2.5 से बड़ी होनी, छोटी है, और 2.4 से बड़ी होगी। समझ में आ रही बात? इतना तो कंफर्म ही है। तो मे बी 2.45 करके देख लेते हैं। 2.45 इंटू 2.45 क्या अप्रोक्सीमेटली 6 के आसपास पहुंच रहा है, ये करके देखना पड़ेगा, बस यही बात है। या कैलकुलेटर से निकाल के चेक कर लो, ये हमेशा इसके बीच में आएगा। समझ में आ रही बात? तो हमेशा बड़ा होगा। इक्वल टू कब होगा? जो वैल्यू सेम हो जाएंगी। मान लेते हैं 3 को भी 2 कर दिया, इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो गया? 2। ये बराबर है किसके? अंडर रूट 2 इंटू 2 से, क्योंकि ये भी 2 आएगा, जो कि ये बराबर है 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का 2 आ गया। So arithmetic mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean when the values are equal. Otherwise arithmetic mean is greater than geometric mean is greater than harmonic mean. ठीक है, बट चूंकि दोनों को इनकॉर्पोरेट करना होता है तो जनरल फॉर्मूला हमारा ये आ जाता है। और इसके बीच में भी आपस में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है दैट कैन बी टेकन एज प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी का हमने अर्थमेटिक मीन लिया, वो ये होता है, इनटू हार्मोनिक मीन किया, वो 2ab अपॉन a प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये मेरा है अर्थमेटिक मीन और ये इनटू हार्मोनिक मीन। अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये a प्लस बी से a प्लस बी खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा मेरे पास? ab, जो कि क्या है? रूट ab का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको, विच इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। तो ये मेरा रिजल्ट है, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो ये तीनों में रिजल्ट आता है एपी, एचपी और जीएम में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है सभी को? यस सर। इसके बाद एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियन। जो वर्ड मीडियन है, जैसे हमने कल पढ़ा था, मीडियन का क्या मतलब होता है? मीडियन, ट्रायंगल में मीडियन होती वो पॉइंट होती है, वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, उसको हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम उसकी एक सेंट्रल वैल्यू पकड़ लेते हैं। सेंट्रल वैल्यू का मतलब जितना डेटा राइट में है उतना ही लेफ्ट में होना चाहिए। तो दैट डेटा वी एज्यूम इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर डेटा सेट। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग वैल्यूज लाइक 3, 7, 12, 16 and 22. Now first of all the step 1 क्या होता है? You have to arrange the data either in ascending order or in descending order. तो मान लेते हैं आपके पास रैंडम डेटा है, उससे काम नहीं चलेगा, हमें सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इस केस में हमने सारा डेटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। चूंकि ये कितने नंबर हैं? देयर आर 5 वैल्यूज, तो इसका मिडिल टर्म क्या बनेगा? मान लेते हैं n वैल्यूज होती तो n प्लस 1/2 मिडिल वैल्यू बनता है। जैसे 5 है तो 5 प्लस 1/2 करेंगे तो कौन से आ जाएगा? 6/2, यानी थर्ड वर्ड, जो थर्ड वैल्यू है वो मिडिल टर्म मानी जाएगी। और थर्ड वैल्यू क्या है? 12। तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 12। तो कैसे करना है? हमने सबसे पहले डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो हम n प्लस 1/2 कर देंगे तो वो हमारा मीडियन आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 4, 5, 9, 11, 14, 15 मान लेते हैं। अब इसमें 6 टर्म्स हो गई। अब अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है, देखिए देयर इज नो सिंगल वैल्यू ऑन व्हिच विल डिवाइड द एंटायर डेटा इनटू 2 पार्ट्स। ऑफ कोर्स ऑड नंबर में तो हमारे पास एक वैल्यू ऐसे आ सकती है कि यहाँ पर भी 2 यूनिट्स हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, तो मिडिल वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसी कुछ नहीं है, इसलिए बीच में हमेशा 2 वैल्यूज लेनी पड़ेगी, ताकि आधा जो इधर लेफ्ट साइड की वैल्यूज है वो और जो राइट साइड की वैल्यूज है वो बराबर हो। अब वो पता कैसे चलेगा कौन सी वो मिडिल की कौन सी वैल्यू है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो यहाँ पे 6, तो 6 टर्म्स है ना, तो n/2 पहला वाला टर्म देगा और n/2 + 1 दूसरा वाला टर्म देगा। ये याद रखना है। जैसे कि n/2 यानी 6/2 एक थर्ड टर्म हो गया और एक अगला टर्म हो जाएगा, यानी कि 6/2 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों मेरे मिडिल वैल्यूज आएंगी। तो मीडियन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं? इन दोनों टर्म्स का एवरेज कर देते हैं, तो मेरा मीडियन इसका 10 माना जाएगा। तो इसमें 10 कहीं नहीं है, यानी 10 एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पे रहेगी कहीं ना कहीं, हाइपोथेटिकल वैल्यू, विच विल डिवाइड द एंटायर डेटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ मीडियन। ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे सेट को 2 हिस्सों में बांट देती है। उसके लिए हमें, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमें आइदर डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, उसके बाद हम वैल्यू को अरेंज करते हैं।
ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है तो अपन n/2 करेंगे तो वो आपको मिडिल टर्म दे देगी, सॉरी ऑड नंबर है तो n/2 प्लस n+1/2 करेंगे तो मिडिल वैल्यू दे देगी, और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो पहली टर्म मिलेगी n/2 से और अगली वाली टर्म उसकी इमीडिएट नेक्स्ट टर्म होती है, इसलिए n/2 + 1 कर देंगे। जो दोनों वैल्यूज आएंगे उनका एवरेज निकाल देंगे, वो हमारा मीडियन कहलाता है। ठीक है, मीडियन के बाद आता है मोड। मोड का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है हम वो मान लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि यार टाइम 6 बजे रखा जाए शाम को या 7 बजे रखा जाए। अब ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि सारे बच्चे सारे टाइम पे कंफर्टेबल हैं, लेकिन मैं देखूंगा अच्छा अगर हमारे पास 20 बच्चे हैं और 12-13 बच्चे कह रहे हैं या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे जो पर्टिकुलर टाइम बोल रहे हैं, तो हम मोर और लेस टाइम उस पर रख देते हैं और बाकी बचे हुए बच्चों को बोलते हैं ठीक है तुम्हें भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम कई बार डिसीजन किस बेस पे लेते हैं, मेजॉरिटी के बेसिस पे लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई डेटा सेट है जिसमें जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसकी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, हम उसमें उसका मोड बोल देते हैं। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो हम उसका बस मोड आ जाएगा हमारा। अगर मान लो ऐसी दो वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसमें मतलब दो बार इक्वल टर्म्स में रिपीट हो रही है तो उसके दो मोड्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मान लेते हैं, मान लो 1 1 1 3 बार है, 2 2 2 बार है, 4 5 6 है, तो इसका जो मोड बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं मेरे पास 1 1 2 2 3 3 3 5 5 5 6 7 8 ऐसे। तो इसका मोड क्या बन जाएगा, मोड्स इसके 3 and 5 बिकॉज दे आर रिपीटिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स एंड दे आर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। राइट, अगर कोई पूछे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 इसका मोड बताओ, तो इसका कोई मोड हो नहीं सकता क्योंकि कोई भी वैल्यू एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो रही। मान लो वहां 1 होता तो हाँ मोड हो सकता था। इस केस में डेटा इज इल डिफाइंड, यू कैन नॉट फाइंड मोड ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, अब मीन मीडियन मोड, मीन एवरेज था, मीडियन मिडल वाली वैल्यू मोड। मीन मीडियन मोड में एक रिलेशनशिप होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब इसमें एम्पेरिकल का मतलब है मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस, सॉरी 3 मीडियन होना चाहिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यानी ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कोई डेटा है और अगर हम उसका मीन मीडियन मोड निकालें तो मोटे तौर पे ये वाला रिलेशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, जो मोड की वैल्यू होगी वो 3 टाइम्स मीडियन होगी, 2 टाइम्स मीन होगी। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, एम्पेरिकल, इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बनता है, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है कि भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी, बट इट इज नॉट ए बैलेंस्ड फॉर्मूला। कोई हिसाब किताब बिठाएगा तो नहीं बोलेगा तो 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन कहाँ गया। लेकिन हमें ये तो कंफर्म है कि बनता तो ऐसे ही है, दोनों नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, H2O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए मान लो 2 है यहाँ पे तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ 2 कर दिया। अब ये फॉर्मूला क्या हो गया, इसको बैलेंस्ड फॉर्मूला बोल देते हैं। अदरवाइज H2 plus O2 is H2O is एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। मतलब अगर आप कोई डाटा लेके बैठ जाओ कि सर ये तो आ नहीं रहा, हाँ अंडरस्टैंडेबल है, आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आएगा, बट क्लोजली आएगा, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, बोलिए, यहां तक बात समझ में आती है? मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज निकालने का तरीका समझ में आया? एवरेज, अर्थमेटिक मीन या वेटेड मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन, फिर मीडियन और फिर मोड। ये सारे निकालने के तरीके होते हैं। दीज आर मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? इसके बाद आता है व्हाट वी कॉल्ड एज मेथड ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है? डिस्पर्जन का मतलब होता है छिटकाव, फैलाव। मतलब जो मेरा डेटा है, अभी हमने क्या निकाला, एक सेंट्रल वैल्यू निकाली और देखा कि डेटा यहाँ उससे उसके आसपास है। डिस्पर्जन का मतलब है कि जो मेरे सेंट्रल टेंडेंसी है, मेरा डेटा उससे कितनी दूर जा रहा है, कितना छिटकाव है मेरे डेटे का, वेरिएशन कितना है, गैप कितना है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ डिस्पर्जन है, सबसे इजी मेथड है, वो होता है रेंज।
मान लेते हैं आप मार्केट में गए, आप शर्ट खरीदना चाहते हो, तो आप दुकान के पे गए, वो सबसे पहला ही सवाल पूछेगा जी साइज क्या है, बता दोगे। फिर पूछेगा अच्छा किस रेंज में दिखाऊं। वो ऐसा क्यों पूछता है रेंज, और आप क्या रेंज बताते हो? अब वो इसलिए पूछता है ताकि उसको सारा का सारा पूरी दुकान निकालनी ना पड़े, उसको आइडिया लग जाए क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तो आपके दिमाग में होता है, मान लेते हैं आप सोच के गए मेरे को ना 1000 रुपए की शर्ट तक चाहिए, तो आप उसको क्या बोलते हो, ठीक है 600-700 से शुरू कर दो, दिखा दो 1000, 1200, 1500 तक। तो आप एक वैल्यू दे देते हो उसको उसके बीच में, क्योंकि आपके दिमाग में जो वैल्यू सेट है ना, आप कुछ उससे नीचे बताते हो और कुछ उससे ज्यादा बताते हो। नीचे इसलिए बताते हो भाई क्या पता सस्ती मिल जाए लेकिन अच्छी पसंद आ जाए तो ले लूंगा। महंगी इसलिए बताते हो कि यार पसंद आ गई तो कोई नहीं, थोड़ा जोर मार के मैं ले लूंगा। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ रेंज। तो रेंज निकालने का तरीका क्या होता है? रेंज निकालने का सिंपलेस्ट तरीका होता है लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू अगर आप निकाल दोगे तो उससे आपकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कोई डेटा का ऑब्जर्वेशन है 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, मान लेते हैं 13, मान लेते हैं ऐसे। अब ये डेटा सेट है, इसकी रेंज क्या है? हाउ डू यू फाइंड आउट रेंज? हायर वैल्यू, ये हायर वैल्यू है, माइनस द लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी रेंज कितनी हो गई 11। एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना है। हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू इज डिफाइंड एज योर रेंज। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक, इसके बाद आता है मेरा क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है? तो क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल वर्ड कहां से आता है? क्वार्टर से। वैसे भी शाम का टाइम हो गया है क्वार्टर का, है ना? सर पानी भी आ गया है। पानी भी याद है, कितना ऑब्जर्वेशन कर रहा है। बर्फ में ले है? क्या तू लाएगा? बर्फ तू लाएगा? ठीक है, चलो सब लोग अपने अपने जगह जहां जहां बैठे हुए इंतजाम कर लो। तो अब हम आगे क्वार्टाइल। तो वर्ड जो क्वार्टर है वो पौआ यानी 1/4 से आता है। तो कोई ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को 4 हिस्सों में बांट दे उसको हम क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जो मिडल वैल्यू होती है जिसको मीडियन बोलते हैं, वो क्या था? वो पूरे डेटा को 2 हिस्सों में बांट देगी। अच्छा मान लेते हैं मैं एक वैल्यू यहां ले लेता हूं और एक वैल्यू यहां ले लेता हूं। अगर मुझे किसी भी चीज को 4 टुकड़ों में बांटना है तो 3 कट मारने पड़ेंगे, है ना? किसी भी हिस्से को 4 में मार, एक क्या हो गया, बोलना है? एक मिनट अभी कर देता हूँ। ठीक, सो अगर मुझे किसी भी डेटा सेट को 4 हिस्सों में बांटना है, किसी भी 4 को 3 कट मारने पड़ेंगे। सो दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल, क्योंकि ये पूरे डेटा को 1/4 हिस्सों में बांटता है। दिस इज माय सेकंड क्वार्टाइल एंड दिस इज माय थर्ड क्वार्टाइल। ठीक, तो हमें ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जो डेटा को मेरे 4 हिस्सों में बांट दें। फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। सो क्वार्टाइल डिविएशन जो होता है वो होता है थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू का एवरेज। इसको हम क्वार्टाइल डिविएशन बोलते हैं। तो ये क्वार्टाइल यानी पोजीशन निकलती कैसे है? क्वार्टाइल की पोजीशन कैसे निकलेगी? हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वार्टाइल की पोजीशन निकालने के लिए। मान लेते हैं मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। ऑड टर्म्स का मतलब है, मान लेते हैं मेरे पास टर्म है 4, 9, 12, 15, 20, 23, 25। कितनी टर्म्स होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टर्म्स हो गई। ठीक है, 7 टर्म्स हो गई। अच्छा अगर मेरे को मीडियन निकालना होता तो अपन कैसे कर रहे थे? मैंने आपको बताया था ऑड नंबर ऑफ टर्म्स से मीडियन निकालना है तो अपन ने क्या किया था? n+1/2 किया था, यानी कि 7 + 1 8/2 फोर्थ टर्म आ जाएगी। अब बेसिकली क्या है कि चूंकि हमें 2 हिस्सों में बांटना था इसलिए हमने बाई 2 किया था। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? n+1 क्या करना पड़ेगा लॉजिकली? 4। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल बनेगा वो 1 + n+1/4 बनेगा। जो सेकंड क्वार्टाइल बन रहा है वो टेक्निकली इसका डबल बन रहा है, क्योंकि ये एक हिस्सा है तो ये 2 हिस्सा है, तो आप इसको अगर डबल कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगी। और थर्ड क्वार्टाइल क्या है? फर्स्ट हिस्सा, सेकंड हिस्सा, थर्ड हिस्सा। ये क्या बनेगा? 3 टाइम्स n+1/4। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है?
n+1/4 टर्म यानी कि 7+1/4 यानी कि सेकेंड टर्म। जो सेकेंड क्वार्टाइल होता है वो इस सेकेंड टर्म है तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, ये थर्ड क्वार्टाइल है तो सिक्स्थ टर्म हो जाएगा। ऑब्वियसली हमें सेकंड क्वार्टाइल की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वार्टाइल डिविएशन जो है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल का एवरेज होता है, क्योंकि एनीवे सेकंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट मीडियन, जो कि हम पहले कर चुके हैं। तो हमें फर्स्ट और थर्ड में इंटरेस्ट है, तो n+1/4 और 3 × n+1/4। तो सेकेंड टर्म कौन सी हुई यहाँ पे 9, तो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी हुई 9। थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कौन सी, सिक्स्थ टर्म, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म कितनी हुई 23। तो अब मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल आ गया, थर्ड क्वार्टाइल आ गया, तो क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है, दोनों का डिफरेंस 23 - 9 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 7। सो क्वार्टाइल डिविएशन हैपेंस टू बी माय 7। यहां तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके हाँ जी, बाकी राधा सर अगर इसके अंदर ये अपना इवन होता तो? अभी करते हैं। हाँ जी अंकिता, यस सर। चलो अब ये हमारे पास क्या थी, ऑड टर्म्स थी, तो हमने n+1/4 कर लिया था। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती तो मामला फंसता, और वो कैसे होता अभी हम देखते हैं। इसको मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से माय एग्जांपल इज 3 7 18 24 27 एंड 31। ठीक है, तो अब मेरे पास जो टर्म्स हो गई 6 टर्म्स हो गई हैं, तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए मुझे, n+1/4 टर्म होना चाहिए। ठीक है, n+1/4 यानी कि 6 + 1/4 यानी 7/4 टर्म होना चाहिए। 7/4 टर्म का मतलब है 1 + 3/4 टर्म होना चाहिए। Now, what does this really mean? I mean, it really means first term, मान लेते हैं ये मेरा डेटा सेट है, हम इसको 4 हिस्सों में बांटना है, टेक्निकली प्रॉब्लम तो यही है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब ये 3 हो गया, और कौन सी पोजीशन है 3/4 पोजीशन, यानी कि ये सेकंड पोजीशन है। तो अगर मैं 3/4 पोजीशन ढूंढूंगा तो कहीं यहाँ कहीं मिलेगी, थोड़ी सी राइट साइड में। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ये फर्स्ट है, ये 3/4 बनेगी, यानी 1/3/4 की जो पोजीशन यानी 1.75 पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। तो मुझे पता कैसे चलेगा इसके बीच में कहां पे, तो फर्स्ट टर्म तो है वो मैं ले लूंगा 3, और जो सेकंड टर्म है वो इन दोनों की जो रेंज है, वो रेंज क्या है 7 - 3, ये गैप आ रहा है ना 7 - उसकी कौन सी पोजीशन चाहिए मुझे, 3/4 पोजीशन चाहिए। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? मतलब हम एक पोजीशन है, ये 1 7 मतलब ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो मुझे वो वैल्यू चाहिए जो इनके बीच में 1.75 पोजीशन दिखाएगी। तो ये टोटल पोजीशन फर्स्ट है सेकंड है, तो 1 यहाँ पे होनी चाहिए वैल्यू। वो कैसे पता चलेगी, पहली टर्म 7 और 3 के बीच में 4 का गैप है, 4 का जो गैप है उसमें 3/4 वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये बन जाएगी 3 प्लस ये 4 बन जाएगा 3 यानी 6, यानी जो 6 अगर ये कुछ वैल्यू होती, कुछ ट्रेंड फॉलो कर रहा होता और ये कुछ वैल्यू होती, तो मेरी ये पोजीशन 6 को रिप्रेजेंट करती, यानी मेरा जो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई, जो Q1 की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई 6। ऐसे ही मेरे को थर्ड क्वार्टाइल चाहिए, तो मुझे 3 × n+1/4 होता, यानी कि 3 × 7/4 टर्म है, यानी 21/4 टर्म है, यानी कि 5 1/4 टर्म है। 5 1/4 टर्म का मतलब फिफ्थ टर्म और 1/4 पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और 1/4 पोजीशन, 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन तो हो गई ये। इसकी 1/5 पोजीशन जो है वो कहाँ लाई करेगी, अप्रोक्सीमेटली, मतलब बीच में नहीं, इधर 27 के पास लाई करेगी। तो और 27 से और 31 के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है, और मुझे कौन सी चाहिए 1/4 पोजीशन चाहिए। तो मेरी वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, 27th वैल्यू तो है ही, विच इज फिफ्थ वैल्यू, प्लस 1/4 पोजीशन, सॉरी 25 में 27 है ये, 1/4 पोजीशन किसका, इसका गैप 31 - 27,
तो ये बन जाएगा 27 प्लस 1, 4 से 4 कट जाएगा यानी 28, यानी Q3 की वैल्यू आ गई 28। तो फर्स्ट क्वार्टाइल मेरा, यानी कि अगर मैं 5, अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा होता इसके बीच में, तो 5.25 पोजीशन जो बनती वो 28 की बनती। अब मेरा Q1 और Q3 आ गया, तो क्वार्टाइल डिवीजन जो होगा वो Q3 माइनस Q1/2 होएगा, तो 28 माइनस 6/2 होएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 11। तो ये क्वार्टाइल डिवीजन बनेगा अगर ये इवन नंबर है तो। हाँ तुषार, बनी बात? यस सर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा क्वार्टाइल डिवीजन हो गया। इसके बाद हम आते हैं मीन डिविएशन पे। मीन डिविएशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, मीन वैल्यू से वो डेटा कितनी दूरी पे है, हम उसको मीन डिविएशन बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमें मीन डिविएशन का एग्जांपल लेना है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक वैल्यू है 2, 3, 9, 11 एंड 15, मान लेते हैं ये वैल्यूज है। तो सबसे पहले तो इसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन बनेगा इसका एवरेज 2 + 3 + 9 + 11 + 15 डिवाइडेड बाय कितनी टर्म्स है, 5। कितना आ रहा है, 20 और 10 30 बटे 5 6, नहीं गलत कर दिया, और भी कुछ है, 2, 3, 9, 11, 15। तो मीन वैल्यू आ रही है 20 और 20, 40 बटे 5 8। तो मीन डिवीजन 8। इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास एक सेंट्रल वैल्यू आ गई 8, उससे 2 कितनी दूरी पे है, इससे 3 कितनी दूरी पे है, इससे अगर ये इधर है तो 9 कितनी दूरी पे है, इससे 11 कितनी दूरी पे है, और इससे 15 कितनी दूरी पे है। डिविएशन यानी दूरी। तो दूरी निकालने का एक तरीका ये है कि माइनस करके देख लेते हैं। यानी अगर कोई नंबर लाइन होती, वहां पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं 2 होता, कहीं 3 होता, कहीं पे 8 होता, यहाँ पे कहीं 9 होता, और यहाँ कहीं 11 होता, यहाँ कहीं 15 होता। तो इसकी दूरी, यहाँ से दूरी कितनी है, 6 यूनिट की। इसकी दूरी कितनी है, 5 यूनिट की। इसकी दूरी कितनी है, 1 यूनिट की। इसकी दूरी कितनी है, 2-3 यूनिट की। यानी डिफरेंस दूरी, हमें बेसिकली दूरी निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 8 - 2 ये डिस्टेंस आ जाएगा, 8 - 3 ये डिस्टेंस आ जाएगा। फिर यहाँ 9 - 8 नहीं कर रहे हैं हम, 8 - 9 ही कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखना, 8 - 11 नेगेटिव आ रहा है, और 8 - 15 नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चूंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम ये नेगेटिव नहीं लेते, यहाँ पे मॉड डाल देते हैं। नेगेटिव नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमें डिस्टेंस लेना है। ये डाल दिया, तो अब मेरी दूरी निकल गई। ठीक है, मेरी कितनी निकल गई, दूरी निकल गई। और कितनी वैल्यूज हैं ये मेरे पास, ये आपका मीन डिविएशन आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बनेगी 6, इसकी वैल्यू बनेगी 5, इसकी वैल्यू बनेगी 1, इसकी वैल्यू बनेगी 3, और इसकी वैल्यू बनेगी 8, 9, 10, 11, और ये कितना हो गया, 15, 7 डिवाइडेड बाय 5, ये बनेगा 10 और बनेगा 12, 10 और 12 22 बटे 5, 4. ये मीन डिविएशन है। डिविएशन यानी एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली हमने, ठीक है, और तो इसको इस तरीके से इन अ सेंस, मतलब थोड़ा सा, मतलब अच्छा फीलिंग देने के लिए हम ये कर सकते हैं, समेशन, यानी कि ये ऐड करना है। किसका समेशन ऐड करना है, डिफरेंस का। किसका डिफरेंस का, मीन माइनस xi। xi क्या है, ये वैल्यूज, यानी कि जो i की वैल्यू है वो कहां से कहां वेरी कर रही है, 1 से लेके n तक, मान लेते हैं n टर्म्स हैं, तो xi ये, और इसका इनफैक्ट ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ मॉड लगाते हैं हम, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू में से बाकी वैल्यू को माइनस करके मॉड लगा दिया। ठीक है, और कितनी वैल्यू, डिवाइड बाय n। तो इसी चीज को थोड़ा स्टाइलिश लिखना है, थोड़ा सा फीलिंग आने की, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ये कर देना। ठीक है, या उल्टा भी मॉड है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब किताब देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है i = 1 से लेके n तक, उसने लिखा हुआ है कि xi माइनस x बार मतलब अर्थमेटिक मीन a लिखा हुआ है, बट I hope you understand it is one and the same thing. It is not going to make any difference because ultimately it is a mod value.
समझ में आ रहा है मीन? ये मीन डिविएशन है। इसी तरीके से हमारा एक चीज होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। SD। अब अभी हमने यहाँ पे पॉजिटिव कैसे किया था? मॉड लगा के। अगर हम पॉजिटिव मॉड लगा के ना करें, स्क्वायर करके कर दें और अंडर रूट कर दें, तो हमारा मीन डिविएशन निकल जाएगा। मान लेते हैं इसी का मुझे मीन डिविएशन निकालना है, सेम डेटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 - 6 था ना इसका, जैसे कि 8 - 2 स्क्वायर कर दो, प्लस 8 - 3 स्क्वायर कर दो, प्लस 8 - 9 का स्क्वायर कर दो, प्लस 8 - 11 का स्क्वायर कर दो, प्लस 8 - 15 का स्क्वायर कर दो। अब इसका अल्टीमेटली आप अंडर रूट निकाल दो। ये इसका मीन डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा 36 + 25 + 1 + 9 + 49 डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट। जो भी आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से बनेगा 10। ये बन जाएगा 59 और 10 59 25 ऐड कर दोगे तो 9 14 7 और 1 8 और यहाँ बच गया 36 10 हासिल 1 9 3 12 120/5 तो 524 में जाएगा। अप्रोक्सीमेट जो भी अंडर रूट ऑफ 24 आपका आंसर आता है, 5 से थोड़ा सा कम आएगा, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम सारा हिसाब किताब फॉर्मूले में करना चाहें तो हम क्या करेंगे? समेशन लिया हमने, समेशन किसका लिया? मान लेते हैं हमारे पास जो वैल्यू थी उसमें से मीन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, इसका समेशन लिया हमने, किया था इसको डिवाइडेड बाय n, एंड फर्दर हमने इसको किया था अंडर रूट। और जो i है, i इज वैल्यूइंग फ्रॉम 1 से लेके n तक, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये मेरा बन जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। इसी चीज को एक तरीके से और किया जा सकता है, रेदर देन एक्चुअली डूइंग ऑल दिस, स्ट्रेट अवे यू कैन टेक द स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज विच आर गिवन, यानी कि हमें चाहिए समेशन xi का होल स्क्वायर, यानी जो टर्म्स दे रखी हैं उसका समेशन, यानी i की वैल्यू कर रही है 1 से लेके n तक, इसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी मेरा मीन डिविएशन बनता है। यानी इस केस में अगर मैं बात करूं कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, तो जो हमारा गैप था, कौन सा गैप था? 8 का गैप था, 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 तो हमारा मीन था, जो हमारा गैप था उसको ले लेते हैं। बेसिकली कह रहा है कि जो हमारा गैप था, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, जो डिस्टेंस मतलब था, प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसको ऐड करना है डिवाइडेड बाय 5। समझ में आ रहा है? ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर ज्यादा वैल्यूज, ठीक, ओके, इसमें और उसमें से क्या माइनस करना है? जो मेरा अर्थमेटिक मीन आया था, क्या आया था? 8 आया था, 8 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? इसका अंडर रूट, ये भी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ही देगा। यानी रेदर देन फर्स्ट फाइंडिंग आउट गैप्स यानी डिस्टेंसेस and then squaring and dividing by n, it is asking us to first find out the square of independent values, उसका सम निकाल दो और मीन के स्क्वायर में से उसको माइनस कर दो, तो भी आपका आंसर वहीं पहुंच जाएगा जहां हम जाना चाहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन में। अगर हमने ये अंडर रूट नहीं निकाला, अगर हमने अंडर रूट नहीं निकाला, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा? ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस। तो अगर वेरिएंस निकालना है तो हमें अल्टीमेटली स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा, यानी अंडर रूट ना ही निकालो तो हमारा काम चल जाएगा। This takes care of your statistics as given in our books. सर इनका हो गया स्टैट पूरा? हाँ हो गया बिल्कुल।
सर कुछ वो 2006 वाले डाउट हैं, आपसे सुबह डिस्कस किए थे, वही इसी विंडो पे पढ़ा देते तो। हाँ पहले बाकी जिस, हाँ कोई नहीं, मैं देखता हूँ 2006 वाले क्या है, क्या किस चीज के डाउट्स हैं। वो क्वांट के हैं सर डाउट, मतलब आज पेपर सॉल्व किया था ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए थे। अच्छा कहाँ से किया है, मतलब सॉरी, कहाँ से किया है, क्वेश्चन कहाँ से किया? डाउनलोड किया था, लॉगिन आईडी पे था पेपर, वहां से कर लिया। हाँ, कोई नहीं, एक बार पहले एक बार क्लास होने दो इनको, फिर मैं करता हूँ तुमसे अभी बात। हाँ जी बताओ, पहले इसमें इन टॉपिक्स में कोई इश्यूज? अच्छा अब कौन से टॉपिक्स बच गए हैं बताना एक बार पहले, एक मैसेज आया था मेरे पास टॉपिक्स का। तुम्हारा तो मुझे पता है, गोविंद तुम्हारा मेरे को आइडिया है क्या रह रहा है, और तुषार, गोविंद और तुषार का तो मुझे पता है। बाकी इधर से मानव कुछ बताओ। सर हो गया आपके क्लास देश, में? मैं ग्रुप में भेजा था ना कुछ बच्चों ने, करनाल के ग्रुप में। हाँ जी सर, वो ये भेजा ना, सर्च एनालिसिस और वो स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तीनों हो गए अब। ये तीनों हो गए। अच्छा तो एक बार आप लोगों का सिलेबस हो गया पूरा, या कुछ और सर टॉपिक है? ग्राफ्स मैथ्स नहीं में, हुआ अपना ना। मैथ्स की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ सर मैथ्स में ग्राफ्स कह नहीं रहा हूँ। हुआ मैथ्स में। हाँ ग्राफ्स रहते सर, ग्राफ्स। अच्छा ग्राफ्स रहता है, ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। तो तुषार और तुम्हारा सर भी ग्राफ? हाँ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में ना हाँ, ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं, ऊपर ऊपर से हुआ था। ऊपर ऊपर से हुआ था, ठीक है। तो ठीक है फिर हम ऐसा करते हैं, कल ग्राफ्स ले लेंगे शाम को सेम टाइम पे, ठीक है। ओके सर। यस सर। गोविंद तुम्हारा भी नहीं हुआ ना ये ग्राफ्स तो? नो सर। ठीक है, स्पेशल एंड क्वाड्रेटिक। सर फंक्शंस भी शायद नहीं हुआ हमारा। शायद मत करो एक बार देख लो, बता दो। सर नहीं, फंक्शंस भी नहीं हुआ हमारा। तो ग्राफ्स एंड फंक्शंस मोर और लेस सिमिलर टाइप हैं, तो हम कल कोशिश करेंगे। एक भाई फंक्शन कराऊंगा तो ग्राफ कराना ही पड़ेगा कुछ हद तक, ग्राफ कराऊंगा तो कुछ हद तक फंक्शन कराना पड़ेगा, तो हम कल दोनों देख लेंगे, ठीक है। रूहानी अभी तो किया था मेंसुरेशंस कुछ दिन पहले। ऑनलाइन नहीं करा मैंने। चलो मैं फिर तुम्हें लिंक भेज दूंगा, एक बार लिंक देख लेना। ठीक है सर। हाँ, मेरे को पीएम कर देना व्हाट्सएप पे, तो फिर मेरे को याद रहेगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उन पे मेंसुरेशन। सर Okay, मेंसुरेशन sir. का लिंक ना आप ग्रुप में भेज दो। अच्छा ठीक है, मेंसुरेशंस का मैं ग्रुप में मेंसुरेशंस का, हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ओके सर। तो फिर कल हम ग्राफ्स और क्या था, फंक्शंस, फंक्शंस। ठीक है। एक सर ज्योमेट्री का और भेज दो सर, वो उस दिन रह गया था मेरा, आप कह रहे थे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं। किसका बेटा, किसका बोल रहे हो गोविंद? वो सर उसका ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का, ठीक। तुम ऐसा ना मेरे को मेरे नंबर पे ना व्हाट्सएप टॉपिक लिख के व्हाट्सएप कर दो, मैं फिर लिंक भेज देता हूँ तुमको जिसके जो है। ओके सर। ठीक है, हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो कल हम ये दो करेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या बच रहा है। सर आज की क्लास का भी ये लिंक भेज देना, रिकॉर्डिंग का। आज तो लगा ही, चलो ठीक है, करता हूँ, उसको अपलोड करना पड़ेगा, रात को करता हूँ, फिर कल तुम भेज दे। देखो जिसको जो चाहिए ना मुझे भेजना पड़ेगा, नहीं तो मिक्सअप हो जाता है कई बार किसको क्या भेजना है, तो मेरे को बस भेज दोगे तो मैं आपको जो जो है आज की रिकॉर्डिंग, आज के ग्रुप पे डालनी है क्या रितेश? सर मर्जी है, ग्रुप में डाल दो। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं डाल दूँ। दोनों डालनी है, सिर्फ ये वाली डालनी है फंक्शन, ये सर सिर्फ ये वाली डाल देना, मुझे तो यही देखना है। स्टैटिस्टिक्स वाली, ठीक है, ठीक है, ठीक। सर करनाल सेंटर में आप फिर हमको LRDI भी कराओगे ना, आप कराओगे ना? क्या जैसे चीज? फिर क्वांट खत्म हो जाएगा, LRDI भी आप ही कराओगे ना? LRD कोई नहीं, पहले क्वांट खत्म करते हैं, देखते हैं, करा दूंगा, कोई बात नहीं। वैसे सर इज गेटिंग स्लाइटली बेटर, आप ही कराओगे तो ही में भी नहीं नहीं है, मैं सर कराएंगे, सर ठीक हो रहे हैं वैसे तो, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएंगे, अगर ठीक हो जाएंगे तो ठीक है,
अगर ही इज नॉट वेल, मान लो नहीं आ पाते हैं, फिर तो जो बचा हुआ है वो करवा दो। सर आप ही करा देना फिर भी। इसको मिला सर दो। आप करवा देना और कोशिश। आप नहीं तो सर कोई और टीचर अरेंज करवा देना, क्योंकि बहुत सारा रहता है लार का ना हमारा। पूरा ही रहता है, 1-2 टॉपिक्स हुए हैं बस। पूरे हाँ सर, कैट में, पूरे कैट हमारा में। स्टार्टिंग से हुआ ही नहीं, जब से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था ना। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे कैट में टॉपिक ही एक है। सर वो ये टॉपिक तो अच्छे से करना है, बस वो आप करा देना। हाँ वो अरेंजमेंट है, वो तो पजल्स और डेटा अरेंजमेंट का टॉपिक है, और तो कुछ है ही नहीं। सर आप डीआई ऑनलाइन कराओगे? बीआई में यार 1-2 टॉपिक्स कुछ बच्चे कह रहे थे, शायद उसमें मेरे ख्याल से एक टॉपिक है कोई गेम्स एंड टूर्नामेंट्स है शायद, हाँ और सर। एक टॉपिक है और नेटवर्क सर डायग्राम। reasoning वो मैं based करवा थी। दूंगा तुम्हें दोनों, ताकि सबका कवर हो जाएगा वो। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। सर रीजनिंग बेस्ड डीआई का सेशन और लगा देते, वो हुआ नहीं है अच्छे से। यस सर। ठीक है, अब रीजनिंग बेस्ड बीआई तो मतलब इनफाइनाइट है, क्या ही करा दूं, मुझे समझ तो नहीं आ रहा, बट ठीक है मैं कुछ करवा दूंगा तुम्हें जो अच्छी फील आ जाए। डीआई करवा दो सर, दोनों में से एक करवा दो कोई भी। क्या किस में से? क्वांट बेस्ड डीआई है ना, उसे क्वेश्चंस आते हैं काफी, पिछले साल के कई क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें क्वांट बेस्ड डीआई में। अच्छा ठीक है, तो मेरे को ना भेज दो, जो तुम्हें ऐसे लग रहा है ना ये क्वेश्चन करवा दोगे तो मेरा कवर हो जाएगा, तो भेज दोगे तो उसमें थ्योरी जोड़ के मैं आपको करवा दूंगा। हाँ जी, भेज थ्योरी देते। नहीं है पर सर ग्रुप में भेज दें। नहीं, तुम मेरे को भेज दो पहले इंडिपेंडेंटली, मैं देख लेता हूँ फिर रितेश उसको सर को पर्सनली भेज दे। हाँ मेरे को भेज दो जो ऐसा इशू है। ठीक है, चलो चलो ठीक है, रेस्ट कैन लीव एंड एक्सेप्ट फॉर शिवम, मैं उसका एक बार देख लेता हूँ क्या इश्यूज हैं। बाकी लोग अपना आज की क्लास को हम रैप अप कर देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो अभी हम Thank you, sir. इमीडिएटली तो कल का एजेंडा है फिलहाल अपना। ठीक है,